So this is the main entrance, ठीक है. So सुबह का सीन ये होता है. So you can either go by the bus, Lyft bus, which hardly works, and or you can take an auto. So yeah, people are going for the juries today, but I don't have any juries, so I'm just leaving today only. So I thought just to record some clips for you all. So yeah, this is how the hostel looks like. The B and the D wings are here, and the A and the C wings are here. And this is how the hostel looks like. It has 10 floors. The upper 5 floors are for ACs, and the down ones, the 3 floors are for non-ACs, and the lower one, which is the first floor, is dormitory, and they provide both AC and non-AC dormitory. So if you move here, so here is a basketball court. So if you are interested in playing basketball, so you can definitely go for it. But usually people don't get time, and yeah, this would be a very wrong statement that people don't get time, but it's the truth. Like, hardly I have seen somebody playing here, and if they do, they don't have a ball or something like that, and the things go like that only. And this is the mess wala side, so we don't usually go that piche. And this is the cute sa park, which is absolutely my everything, because I just walk here after the dinner. I don't need a walk after dinner, but just for the chit chat session and just talking with my friends. And yeah, so yeah, this is the place, and you can see. And if I get the cats also, I'll record it, because in this hostel there are 2 cats which are like the main ऐसे source of, you know, ऐसे cuties. 2 cats हैं. So on to here. So this is the apartments where the bus wale bhaiya and the another what you can say, मतलब the people who works here can stay. And these are some benches which are ऐसे full रात को. And this is the power house. Yes, इसके अंदर transformers हैं. हाँ, और भी कोई बहुत कुछ है पर मेरे को नहीं पता. So yeah, so this is a cute little hostel tour. And इसके अंदर जाएंगे, अभी रिसेप्शन दिखाती हूँ. So here, जब आप रिसेप्शन से you come inside. So this is a reception. And if you come inside over here, so here is the laundry area, and this is the lift. So this is my wing, matlab last year I had the opposite wing. अगर आप यहाँ से बाहर आते हैं तो here's this place. So this is the B wing and that is the D wing. So यहाँ का व्यू कुछ ऐसा है, बट जो लास्ट ईयर मेरा बालकनी से व्यू था वो अलग था. तो इफ़ यू वांट टू सी दैट, सो यू कैन गो एंड चेक आउट दैट वीडियो एज वेल. लास्ट ईयर मैंने डाली है. एंड इफ़ यू कम हियर, सो दिस इज़ द कनेक्शन बिटवीन द 2 विंग्स. जो 2 बिल्डिंग्स थी ना रिसेप्शन के बाजू में, this. So this is the corridor. This is the filter from where we drink, and there's a story about this filter as well. I was not allowed, ठीक है, by my ऐसे parents to drink कूलर वाला and this water when I was in school. कभी भी बाहर का पानी मैंने नहीं पिया है, बट यहाँ पे आके पीना पड़ा. एंड देन इट्स सेफ, ठीक है, मतलब कुछ नहीं होता. आप बीमार नहीं होगे तो मरोगे नहीं, ज़िंदा हो जाओगे. मैं तो क्योंकि ज़िंदा ही हूँ अभी तक, तो इट्स मतलब ठीक है भाई. सो या दिस इज़ द कबाड़ा खाना. ये भाई तुम लोग मानो कि ये बिल्डिंग बन गई है. अगर ये बिल्डिंग नहीं बनी होती ना, तुम लोग ट्रॉमा में चले जाते भाई. दिस बिल्डिंग इज़ सो बैड. दिस इज़ सो बैड. मतलब ये जैसे दिख रहा है, दिस इज़ पूरा ऐसे कबाड़ टाइप्स. ये पूरा वैसी थी बिल्डिंग. मतलब ये ऐसे लगती थी हॉन्टेड बिल्डिंग. बारिश में तो इसके ऊपर वो फंगस लग जाती थी भाई, एंड वो एल्गे पूरा ऐसे गंदा सा. ओहो, इतना गंदा दिखता था ना ये. एंड यहाँ पे भाई मेरा रूम था. मेरे को तो डर लगता था रात को सोने में, बट अब ये बन चुका है. एंड ये जब बना है ना, तो मेरे पहले का जो 3rd सेमेस्टर था वो पूरा इसी की वजह से ख़राब हुआ है. मतलब अच्छा था, बट यू नो द नॉइज़ एंड एवरीथिंग गेट सो बैड. भाई ये पूरी कंस्ट्रक्ट मेरे सामने हुई है. मतलब जैसे पेंट वेंट सब हुआ है, जैसे वहाँ से ऐसे लेबर्स अटक रहे हैं, व्यू आ रहा है बिल्कुल. एंड इसके बारे में बहुत लोग कुछ हॉन्टेड स्टोरीज़ बोलते हैं. ओ शिट, अंदर एक आदमी भी देखा मैंने अभी, बट नेवर माइंड. ओ 2 आदमी हैं, नेवर माइंड अगेन. ठीक है, हॉन्टेड होगा तो मुझे नहीं पता. एंड दिस इज़ अ साइड विच आई रियली लव.
सजनी रे। मेरे को काम वाम नहीं है, मेरे को पैकिंग करनी है. सो दिस इज़ द फर्स्ट फ्लोर. सो आई हैव अ हैबिट ऑफ लिविंग इन 14th फ्लोर, तो मेरे को चलेगा. बट सम पीपल डोंट. तो भाई थोड़ा हाइट वाइट भी देख लेना. 10th फ्लोर तक है. इफ़ यू टेक AC रूम तो 5 फ्लोर से ऊपर ही मिलता है. सो या दिस इज़ दी अनदर थिंग. सो यहाँ पे देयर स्टेयरकेसेस. हाँ बाय द वे ये दोनों बिल्डिंग लिफ्ट की हैं, तो इनमें से एक शायद डिज़ाइन बनने वाला है, लेदर डिज़ाइन, क्योंकि लिफ्ट में लेदर डिज़ाइन नहीं है. दिस इज़ द वॉशरूम. The washroom is pretty decent, and this thing has come. So this is the हाथ वाला hand dryer. Yeah. Nice. So this saves a lot. मतलब when you are tired ना, so I always prefer hot shower. So this is for the hot and this is for the cold, and it works. It's fine. So this is my room and आएंगे अभी हम. ये लोग रात भर कुछ कुछ पटकते रहता है, पता नहीं क्या बन रहा है. सो दिस इज़ माई रूम. ठीक है, डोंट बी जज एट ऑल. मैं पैक कर रही हूँ अभी. मेरा पेट में दर्द हो गया भाई ये उठा के. हाँ. सो दिस इज़ माई बेड शीट. ये मुझे मेरे फ्रेंड ने गिफ्ट की थी बिकॉज मेरे को मेंटल ट्रॉमा हो गया था वापस. मतलब आई हैव अ लॉट ऑफ बेड शीट्स, ठीक है, बट वो सारी गंदी थी एंड मेरे पास बेड शीट नहीं थी बिछाने के लिए. एंड मैं रोने धोने लग गई कि अब मैं मतलब यू गेट सम अचानक से ऐसे ब्रेक डाउन. तो देन फिर आ गई थी ऑर्डर करके कि भाई कोई नहीं, चुप हो जा, इसको बिछा लेना. सो या एंड ये 2 सारे टॉयज़ हैं. ये 2 भी मुझे, तीनों मुझे एक्चुअली गिफ्टेड हैं, ठीक है. सो I have a memory with them. So yeah, this is given by my didi and these 2 are given by my friends, my Delhi wale friends. So yeah, and yeah, this is the packing. ये मेरा भी socks सूख रहे हैं इमरजेंसी में क्योंकि मैंने कल धोए थे इनको एंड ये इनको सूखना बहुत ज़रूरी है. ये मेरा बच्ची की पैकिंग चल रही है. ये भाई इसके बारे में बताना चाहूँगी कुछ. मेरे साथ कल इतना बुरा हुआ है, मैं रात को रो गई भाई. मैं आई लेजिट अगेन हैड अ ब्रेक डाउन भाई. मैंने इसमें चाबी पैक कर दी थी, मतलब मेरी कीज़ इसमें पैक हो गई भाई, और ये टेप वेप लग गया. मैं रात को पागल हूँ ढूंढते. मैंने वहाँ पे बाहर जो ऐसे गार्बेज रखा वहाँ पे जाकर ढूंढा, कुछ नहीं मिला. फिर ये आई, मैंने रेज़र से सब फाड़ा, मैंने इसके अंदर से निकाला, मुझे मेरी चाबी मिल गई. अंदर दब के कहीं पड़ी थी भाई, मुझे तो रोना आया. फिर मेरे शूज़ पड़े हैं जो कि मुझे साफ़ करने हैं, बट कोई बात नहीं, मैं जा रही तो तभी साफ़ होंगे. ये मेरी बकेट है एंड ये मेरा स्टैंड है. तो मैं सोचूँ, देखो वैसे यू आर ओनली अलाउड टू गिव 4 बैग्स, मतलब 1 2 3 4. नाउ दिस जो है ना, आई इंक्लूडेड एज अ 5th वन. मतलब मैं इसको बकेट बोलूँगी, बकेट नहीं घुसी थी कहीं, तो बस आई कीप द बकेट, दैट्स इट. हाय गाइस, जब आप लिफ्ट छोड़ोगे आपको ऐसे ही कार्टन हंटिंग पे निकलना पड़ेगा. सुबह उठते ही देखने को मिल रहा है ये सब देख के ना मेरे को चक्कर आ रहा है. मतलब मैंने ऐसा नहीं है ना, कभी पैकिंग नहीं की, ठीक है. मेरे को पैकिंग की बहुत ज़्यादा आदत है, बताना नहीं चाहूँगी क्यों, बट है बस. तो भाई मेरे को आदत है, मैंने पूरे घर का घर पैक कर रखा है. मतलब बहुत ज़्यादा हेल्प कराई थी, ठीक है, ऐसे 80% 50 से ज़्यादा. बट अब मुझसे ये नहीं हो पा रहा है भाई कि क्या बकवास है, क्या क्यों इकट्ठा किया था मैंने ये सब. भाई फेंको सब, मेरे को नहीं पता. ये एक बंदे का सामान है, ठीक है, एक बंदा, मेरा बंदा, जिसका मतलब मुझ नाजुक इंसान का सामान है. नाजुक तो नहीं हूँ मैं, बट तब भी भाई बहुत ज़्यादा सामान हो गया है. वन ऑफ द स्लीव्स अगेन. तो यहाँ से हाथ डलता है, तो मतलब ये से विंग्स जैसी बनती है, तो इसको बैटमैन बोलते हैं, बैटविंग बोलते हैं या फिर यहाँ बैट नहीं, ये डॉलमैन है. सी आई जस्ट गॉट कन्फ्यूज, ठीक है, मेरे दिमाग में काम कर रहा है. वट एवर इट इज़. एंड इन दिस वी डू फ्रेंच सीम ओवर हियर एंड ओवर हियर एज वेल. नॉर्मल सीम नहीं छोड़ते हैं
मतलब अगर आप इसको अंदर से देखोगे तो ये कुछ ऐसी दिखती है, मतलब रो एजेस नहीं दिखते। इसको भी करते करते मेरे कोरोना निकल गया था, कोई बात नहीं। नाउ द सेकंड वन इज़ दिस, ठीक है। सो दिस इज़ द पफ स्लीव जो बेसिकली ब्लाउजेज़ वगैरह में चलती थी या फिर ऐसे रिटर्न टाइम में चलती थी। पफ स्लीव्स है, यहाँ से आयन वायन करना पड़ेगा, मैं नहीं करने वाली, मैं जिसको फेंक रही हूँ, ठीक है। एंड बिकॉज इसमें साइन हो गया था, आई कांट इवन गिव इट टू माई जूनियर्स। सो इसमें हम फेसिंग लगाते हैं, ठीक है। सो दिस इज़ द फेसिंग थिंग। हैंड हेम किया था, इसमें भी रोना निकलता है, मैं बता देती हूँ पहले से किस में रोना निकलेगा। तो इसको हैंड हेम किया था पहली बार, तो जो इसमें मैं दिखाती हूँ, एक यान है ना, इसके अंदर से डाल के आपको हेम करना पड़ता है, तभी इतना क्लीन फिनिश आता है। तो यूजुअली ब्लाउजेज हम जैसे डेलिकेट पीसेस होता है उसमें ये यूज़ होता है, यहाँ से स्टिच पड़ती है। सो या दिस आर द 2 more things which I found. दिस इज़ द कफ जो हम प्रैक्टिस करते हैं, एंड इफ़ यू आर एबल टू सी दिस इज़ अ कर्व्ड वाला कफ एंड दिस इज़ अगेन अ कर्व वाला कफ, दिस इज़ अ एज कट, ठीक है। दिस द थिंग, ये सारा वेस्ट है, मुझे नहीं चाहिए। फर्स्ट सेमेस्टर सेकेंड सेमेस्टर बकवास, ये सारा मैं फेंकने जा रही हूँ। तो भी मैं सब, मतलब मैं दिखाती हूँ भाई, एक एक स्लीव का पैटर्न, एक स्लीव का पैटर्न, सारी स्लीव का पैटर्न, ये सब बकवास। एंड ये वाली स्लीव बनाने में तो जो जान जाती है, दिस इज़ कॉल्ड डॉलमैन स्लीव्स। वाओ, कुछ देख लो भाई। तो उससे निकले थे नाइट आउट के लिए, नाइट आउट फॉर्म ही सारी। We were about to reach station. आधा पहुंच गए थे भाई हम। मैंने पूछा लारा हम कितने बजे वापस आएंगे, कहती अभी हम तो लेट आएंगे शायद। मैंने कहा लेट, कितना लेट? चल, और कहती लेट आएंगे। फिर हमें आता है नाइट को हिट हुआ कि क्या हमने तो नाइट आउट भरा ही नहीं है। नाइट आउट नहीं भरा है।